Dear Heavenly Father, thank you for being with us, Lord. Lord, please help us in all our activities, Lord. Please be with us. In Jesus' name we pray. Amen. प्रार्थना की छोटी सी प्रार्थना उसने की, कहता है तेरे दास सुन रहा है। छोटी शमूएल ने प्रार्थना की, प्रार्थना सुन के प्रभु ने शमूएल के साथ बातें की। वही प्रभु हमसे बात करेगा। छोटी शमूएल ने प्रार्थना की। Every person is the gift of God. Every person is the gift of God. Wonderful, marvelous gift. Wonderful, marvelous gift. I am a gift. You are a gift. Every person is the gift. A very special gift. Unique in all the world. Every person is a gift. लिए गाते रहिए, लगते नहीं रुपये। हालेलुया गाते रहिए, लगते नहीं रुपये। ईश ने हमको आँख दिए, आँख दिए भाई आँख दिए। ईश ने हमको आँख दिए, आँख दिए भाई आँख दिए। वचन को पढ़ते रहिए, लगते नहीं रुपये। वचन को पढ़ते रहिए, लगते नहीं रुपये। हालेलुया गाते रहिए, लगते नहीं रुपये। हालेलुया गाते रहिए, लगते नहीं रुपये। ईश ने हमको कान दिए, कान दिए भाई कान दिए। ईश ने हमको कान दिए, कान दिए भाई कान दिए। वचन को सुनते रहिए, लगते नहीं रुपये। वचन को सुनते रहिए, लगते नहीं रुपये। हालेलुया गाते रहिए, लगते नहीं रुपये। हालेलुया गाते रहिए, लगते नहीं रुपये। यीशु ने हमको हाथ दिए, हाथ दिए भाई हाथ दिए। यीशु ने हमको हाथ दिए, हाथ दिए भाई हाथ दिए। प्रार्थना करते रहिए, लगते नहीं रुपये। प्रार्थना करते रहिए, लगते नहीं रुपये। हालेलुया गाते रहिए, लगते नहीं रुपये। हालेलुया गाते रहिए, लगते नहीं रुपये। यीशु ने हमको पैर दिए, पैर दिए भाई पैर दिए। यीशु ने हमको पैर दिए, पैर दिए भाई पैर दिए। वचन पे चलते रहिए, लगते नहीं रुपये। वचन पे चलते रहिए, लगते नहीं रुपये। हालेलुया गाते रहिए, लगते नहीं रुपये। हालेलुया गाते रहिए, लगते नहीं रुपये। Meet Mr. Nice Guy. You think you're nice? This guy is really nice. Well, I try to do what's right. He's so nice that if good people get to heaven, he'll be the first in line. Ah, shucks. So, Mr. Nice Guy, have you kept the 10 Commandments? Pretty much. Do you mind if we take a look at them and maybe see how nice you really are? Okay. Great. Here's one. You shall not lie. Mr. Nice Guy, have you ever told a lie? Well, yeah.
Who hasn't? What do you call somebody who tells lies? A liar. All right. How about another commandment? You shall not steal. Have you ever stolen anything, even once? Nope. But you just told me you're a liar. Well, I did steal some candy once when I was a kid. And what do you call someone who steals? A thief. All right, let's try another one. You shall not commit adultery. Oh, that's easy. I'd never cheat on my wife. Hi, handsome. Oh, baby! Jesus said, if you even look at a woman with lust, you've already committed adultery with her in your heart. Oh, right. One more. You shall not take the name of the Lord your God in vain. Have you ever used God's name to curse? Oh, my... That, Mr. Nice Guy, is called blasphemy. God gave you life and breath and everything you have, and you've dragged His name through the dirt. So, by your own admission, you're a liar, a thief, a blasphemer, and an adulterer at heart. And that's just 4 of the 10 Commandments. Okay, so I'm not perfect. Well, actually, it's worse than that. Suppose we could put a chip in your brain that would record all your private thoughts for an entire week and then play those thoughts on a giant movie screen for all your friends and family to see. That would be embarrassing. Yeah, I know. The Bible says God knows everything, even the secret thoughts of your heart. Well, compared to some people, I'm a saint. Yeah, that's true, but the standard is God's law, not other people. Besides, even if you sin just 5 times a day, in 1 year, that's 1,825 sins. And if you live to be 70 years old, you'll have broken God's law over 127,000 times. You'll have to answer for every sin on Judgment Day, when the Bible says each of us will give an account of himself to God. But God'll forgive me, right? Well, let's try that in court. Hey, look, I know I keep breaking the law, but hey, can't you, just let it slide? Only a corrupt judge would buy that. A good judge would say, Justice demands that you pay for your crimes. God's not a corrupt judge. He's a holy, righteous judge. He hates sin. Jesus warned that on Judgment Day, everyone who had sinned against God would justly end up in a terrible place called hell, and there will be no escape for all eternity. Well, then, how can anybody get to heaven? There's only one way. God loved the world so much that He sent His Son Jesus to live a perfect life. He never sinned, not even once. Then, Jesus offered to take the punishment for guilty sinners. He was whipped and beaten and nailed to a cross and died so that justice would be served and sinners could go free. Then Jesus rose from the grave and defeated death. You can't earn eternal life. It's God's gift to everyone who will humble themselves and come to Jesus. He'll forgive you, wash you clean, and give you a new heart with new desires. The Bible says if anyone is in Christ, he is a new creation. So stop living for yourself, turn from your sins, and come to Jesus. Then read your Bible and obey it. Find a good church to help you grow, and then go out and tell other people the good news. हाय बच्चों, यहाँ हम अभी एक छोटा सा वीडियो देखा है ना हमने, वहाँ एक समझ में आया आप सबको। मैं अभी छोटी बात में वो वहाँ क्या हो रहा है मैं बताऊँगी अभी आपको। वहाँ हमको एक आदमी दिखाई दे रहा है ना, वो क्या सोच रहा था, मैं मिस्टर परफेक्ट हूँ, मतलब मैं कुछ भी अभी तक गलत काम नहीं किया हूँ, तो अगर मैं मर जाऊँगा तो स्वर्ग के गेट के पास पहले
मैं ही रहूँगा करके सोच रहा था। इतने में क्या हुआ, परमेश्वर उसको एक सबक सिखाना चाहते थे, है ना। स्वर्ग के गेट के पास गए तो उनको क्या प्रश्न पूछा जा रहा था वहाँ, उनको क्या पूछे थे प्रश्न वहाँ, वो जो 10 कमांडमेंट्स परमेश्वर ने दिया था उन सब में एक एक पूछ रहे हैं ना। तुम झूठ कभी नहीं बोले क्या, और तुम कभी गलत बात नहीं बोले क्या, अब तुम मन में कुछ भी गलत नहीं सोचे क्या, ऐसे पूरे क्वेश्चंस पूछ रहे हैं। तो तब एक एक करके उसको याद आ रहा है। तो वो क्या सोचा था पहले वो आदमी, मैं बाहर कुछ गलत काम नहीं कर रहा हूँ ना, तो मैं कुछ पाप नहीं कर रहा हूँ, ऐसे सोचा था। मगर गलत काम मतलब पाप मतलब जो हम अंदर हमारे मन में भी जो सोचते हैं ना, वो भी पाप है करके परमेश्वर बोल रहे हैं। परमेश्वर के दृष्टि में हम जो मन में सोचते हैं, अगर हम कुछ गलत बातें हमारे मन में सोचते हैं ना, वो भी पाप है। परमेश्वर वो देखते हैं, हमारे मन को जांचने वाले हैं परमेश्वर। तो इसीलिए वो आदमी को पूरा याद करवा रहे थे, है ना। तब क्या हुआ, तो पूरा अगर देख रहा तो उसको क्या लगा, मैं तो बहुत गलत आदमी हूँ, मैंने तो बहुत सारे पाप किया है, ऐसे अगर देखोगे तो मैं बहुत सारे पाप कर रहा हूँ, ऐसे करके बोलता है। बाद में तब और एक बात क्या बोलता है, तो ठीक है आप तो मुझे पापी बोल रहे हो, मगर इन सब से तो मैं पवित्र हो करके बोल रहे हैं। मेरे बाजू के लोगों ने तो मुझसे भी ज़्यादा पाप किया, उनसे भी मैं अच्छा हो करके बोलता है। मगर परमेश्वर तब क्या बोलता है, देखो तुम्हें दूसरों से नहीं देखना है, मगर परमेश्वर के आज्ञा से तुम्हारे जीवन को देखना है। वो स्टैंडर्ड्स कौन सा रहना चाहिए, परमेश्वर के आज्ञा से हमारे स्टैंडर्ड्स रहना चाहिए। ऐसा नहीं है कि उनसे भी मैं अच्छी हूँ, इनसे भी मैं, ऐसा नहीं, हमें ऐसे नहीं देखने का है करके परमेश्वर बोलते हैं। मगर तो ठीक है, अभी ये पापी है करके परमेश्वर ने दिखा दिया, तो अभी कुछ इसको रास्ता नहीं है क्या, गलत काम करना ही पाप है करके परमेश्वर ने वहाँ बताया है। तो इसको और कुछ रास्ता नहीं है क्या परमेश्वर के पास जाने के लिए, है। इसीलिए यीशु मसीह इस धरती पर आए हैं ना। ये पाप जो है ना हमको परमेश्वर से बहुत दूर करता है। अगर हम यीशु मसीह को मानेंगे और हमारे पापों को उनके सामने अगर हम छोड़ देंगे, तो तब परमेश्वर हमको क्षमा करेंगे और हमें उद्धार देंगे, और उद्धार के साथ हमको क्या मिलेगा, स्वर्ग मिलेगा। तो इसीलिए पाप बहुत डेंजर है, हमें वो पाप में नहीं रहना चाहिए। जो भी गलत काम हम कर रहे हैं वो सब पाप है, तो वो सब हमको छोड़ के परमेश्वर के साथ हमको रहना है। प्रार्थना करेंगे। हे स्वर्ग में रहने वाले महान पिता परमेश्वर, अब तक हमें संभाला इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद करते पिता परमेश्वर। अभी जो बच्चों को पढ़ाने चाह रहे पिता परमेश्वर, आप हमारे साथ रहकर पिता परमेश्वर हमें अच्छा सिखाने जैसे पिता परमेश्वर बुद्धि ज्ञान दीजिए, और बच्चों को अच्छा समझने के लिए उन्हें भी बुद्धि ज्ञान दीजिए। ये छोटी सी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते सुन ले पिता, आमीन। हाय बच्चों, कैसे हो आप सबको प्रेज द लॉर्ड। आज हम सीखेंगे व्हाट इज सिन। पाप यानी क्या। पाप यानी जैसे कि आप सब जानते हैं, झूठ बोलना, चोरी करना, बुरी बातें बोलना, ये सब पाप है। मगर परमेश्वर ने हमारे लिए अपने जीवन के ग्रंथ में ऐसे बहुत से बातें लिखे हैं कि पाप यानी क्या हमें समझ में आएंगे। आज हम उनमें से कुछ बातें सीखेंगे। पहली बात, आज्ञा का उल्लंघन पाप है। पहले आज्ञा का उल्लंघन किसने किया ये हम जानेंगे। परमेश्वर ने आदम हवा को बनाकर ईदेन की वाटिका में रखा था। उनको जो वाटिका के बीच का वृक्ष का फल है उसे खाने के लिए मना किया था, मगर उन्होंने उस फल को खाकर आज्ञा का उल्लंघन किया। फॉर एग्जाम्पल, आप सब भी जैसे चॉकलेट लाती है, आपको देकर बाकी की रख देती है, तो आप क्या करते हैं, चोरी छुपे छुपे खाकर आज्ञा का उल्लंघन करते हैं, यानी कि मम्मी का बात नहीं सुनते हैं, वही आज्ञा का उल्लंघन है। वैसे आदम हव्वा भी किए तो वो पाप है। तो
हमने पहली बात सीखा कि आज्ञा का उल्लंघन ही पाप है। अब दूसरी बात, प्रार्थना ना करना। हम हर रोज़ सुबह से लेकर रात तक परमेश्वर के लिए प्रार्थना करना चाहिए। सुबह उठने के बाद, खाना खाने से पहले, रात को सोने से पहले हम परमेश्वर को धन्यवाद करना चाहिए, उनको ध्यान करना चाहिए। ऐसा ना करना ये भी पाप है। और तीसरी बात, हम भलाई करना जानते हैं फिर भी किसी से भलाई ना करना, ये भी पाप है। मतलब हम अच्छा करना जानते हैं, नहीं करना। जैसे कि एग्जाम्पल, हमारे पास अच्छा खिलौने रहते हैं, अच्छे कपड़े रहते हैं, वो दूसरे से शेयर नहीं करते हैं, किसी को देते नहीं, तो हम जानते हैं देना चाहिए, बांटना चाहिए, फिर भी हम वैसे नहीं करते हैं, तो ये भी पाप है। और चौथी बात, गुस्सा करना। पता है आपको गुस्से से पहले हमें क्या आता है? पहले हमें ईर्ष्या आता है। ईर्ष्या मतलब जो है हमको जो पसंद नहीं है वो उनसे हम बात नहीं करते हैं। ईर्ष्या के बाद द्वेष आता है। वो हमें पसंद नहीं आते, जो हमारे फ्रेंड हो या कोई भी हो उससे हम ईर्ष्या रख के द्वेष करते। उसके बाद वो सब ईर्ष्या द्वेष हमारे मन में रहेगा तो गुस्सा आता है। गुस्से से हम पाप करते हैं। पाप से हमें क्या मिलता है? हमें श्राप मिलता है, वो भी परमेश्वर देता है। श्राप यानी वो परमेश्वर का विरुद्ध जो भी काम करते हैं उनको ही मिलता है श्राप। जैसा आदम हवा ने एदेन के वाटिका में फल खाकर परमेश्वर का विरुद्ध काम किया, फिर उनको क्या किया? परमेश्वर श्राप दिया। कैसा श्राप दिया? कि एदेन के वाटिका में से उन लोगों को निकाल दिया। ये परमेश्वर का श्राप था। तो वैसा हम नहीं करना चाहिए। अभी तक हमने क्या सीखा? पहली बात, आज्ञा का उल्लंघन करना पाप है। दूसरी बात, प्रार्थना ना करना पाप है। तीसरी बात, हम भलाई करना जानते हुए भी ना करना, ये भी पाप है। और चौथी बात, गुस्सा करना यानी कि क्रोध, ये भी क्रोध भी हमारे जीवन में नहीं आना चाहिए, तो ये भी पाप है। क्रोध में क्योंकि पाप होता है इसीलिए वो भी नहीं करना चाहिए, परमेश्वर के विरुद्ध जाना नहीं चाहिए। तो अभी पांचवी बात, उल्टा फेरना। कभी कभी हम लोग क्या करते हैं, हमें जो अच्छा सिखाते हैं उनको ही उल्टा फेरते हैं। जैसे कि आदम हवा के बारे में अभी तक हमने पढ़ा कि आदम हवा को परमेश्वर ने फल नहीं खाने से मना किया था और उनको श्राप दिया। उन लोग ने कैसा उल्टा फेरा, इसीलिए श्राप दिया परमेश्वर ने। क्या किया उन लोगों ने पता है आपको? उन लोगों ने जो वृक्ष का फल खाया तो परमेश्वर आके उनसे पूछा कि आदम, तुमने ये वृक्ष का फल खाया, मैंने जो मना किया था? तो आदम क्या किया? आदम ने बोला, हवा जो मेरे साथ आपने दिया, ये स्त्री, इसी ने मुझे दिया तो मैं खाया। फिर हवा से पूछा तो हवा ने कह दिया कि इस सांप ने मुझे दिया तो मैं खाया। ऐसा वो लोग उल्टा फेर के बातें किया परमेश्वर से, तो ऐसा भी करना पाप है। हम आज 5 बातें सीख गए। एक, आज्ञा का उल्लंघन करना पाप है। परमेश्वर से प्रार्थना ना करना पाप है। और भलाई करना जानते हुए भी ना करना पाप है। गुस्सा करना भी पाप है। उल्टा फेरना भी पाप है। बच्चों, ये सब 5 बात आप अपने जीवन में इस्तेमाल कीजिए। ऐसा पाप मत कीजिए। पाप यानी क्या, आपको समझ में आया? तो बच्चों, हम ये पाप नहीं करना है तो क्या करना चाहिए? प्रभु यीशु मसीह के बातों पर चलना चाहिए। जो प्रभु यीशु मसीह ने हमें बताया है, अच्छी अच्छी बातें, वो सब हम सीखना चाहिए, उसके अनुसार चलना चाहिए। प्रभु यीशु मसीह के द्वारा ही हम स्वर्ग जा सकते हैं। अगर हम में पाप है तो हम स्वर्ग राज्य नहीं जा सकते हैं। तो
तो प्रभु यीशु मसीह हमसे जो जो बातें कहा है वो सब बातें हम सुनकर उसके अनुसार चलेंगे तो ही हम स्वर्ग जा सकते हैं और पाप से बच सकते हैं। तो बच्चों, आज का मेमोरी वर्स हम सीखेंगे 1 यूहन्ना 3 अध्याय 4 वचन। प्रत्येक जो पाप करता है वो व्यवस्था का उल्लंघन करता है, क्योंकि पाप व्यवस्था का उल्लंघन है। हाय बच्चों, आज हम मेमोरी वर्स देखेंगे। मेरे साथ बोलो सब लोग। जो कोई पाप करता है वह व्यवस्था का विरोध करता है और पाप तो व्यवस्था का विरोध है। जो कोई पाप करता है वह व्यवस्था का विरोध करता है और पाप तो व्यवस्था का विरोध है। 1 यूहन्ना 3 अध्याय और 14 वचन। 1 यूहन्ना 3 अध्याय और 14 वचन। Everyone who sins is breaking God's law, for all sin is contrary to the law of God. 1 John 3rd chapter and 4th verse. Everyone who sins is breaking God's law, for all sin is contrary to the law of God. We have learned 5 points on what is sin. Okay, let us pray and close this. प्रिय परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद दे रहे हैं प्रभु जी। आज का दिन आपने जो हमें लेसन सिखाया उसके लिए धन्यवाद प्रभु जी। और हम ये लेसन को हमारे जीवन काल में पूरे में हम याद रख के उसके अनुसार चलने के लिए आप हमारी मदद करो प्रभु जी। यीशु मसीह के नाम से ये छोटी सी प्रार्थना दे रही हो, सुन और ग्रहण करो पिताजी, आमीन। सबको जय मसीह की।